I am Kalpana Chaudhary, Associate Professor, Zoology Department, RG PG College. Today, we will discuss about Noctiluca. First of all, we discuss its classification. And before going to its classification, we should know about its structure. Here we can see this is the structure of Noctiluca. It appears rounded in shape, or we can say spherical. And here is groove is present, and this groove is on the ventral side. And in this groove, here is the flagellum is present as well as the tentacle is present. And this groove open into the cytostome and then into the pharynx. Here are some thread-like or fiber-like structures are present, and these are known as the cytoplasmic strands. Protoplasm is present, divided into ectoplasm and endoplasm. Besides, here are some photogenic granules are present and covered by the pellicle. Now we come to its classification. The Noctiluca animal belong to phylum Protozoa. As we know that Protozoa is the first phylum. So Noctiluca is a primitive structure and it is unicellular as well as microscopic. Next, the phylum Protozoa divided into two subphylums, Plasmodroma and Coeliophora. If locomotion by cilia, so comes under the subphylum Coeliophora. But if the locomotion take place in protozoans with the help of either pseudopodia or flagella or tentacles, then comes under the subphylum Plasmodroma. So in case of Noctiluca, phylum Protozoa, subphylum Plasmodroma, superclass Mastigophora, class Phytomastigophora, order Dinoflagellata and genus Noctiluca. हमने यहाँ पर नॉक्टिलुका जीनस को स्टार्ट किया है कैपिटल लेटर से, तो जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से होगा. अगर हम स्पीशीज लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से होगा, और या फिर हम इनको कैप्स में लिखें, और नहीं तो हमने इसको कैसे लिखा हुआ है, इटैलिक साइज में लिखा हुआ है. नाउ वी कम टू इट्स कमेंट्स. जनरली जो नॉक्टिलुका है, अगर हम बीएससी फर्स्ट ईयर में आता है और बीएससी के थ्योरी पेपर देखें तो कई बार 2 मार्क्स में ये नॉक्टिलुका आ जाता है लिखने के लिए, जिसमें हम उसका स्ट्रक्चर और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे, या फिर प्रैक्टिकल में एज अ स्लाइड रखा जाता है ये स्पॉटिंग में. तो अगर स्पॉटिंग में रखा जाता है स्लाइड के फॉर्म में, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता वहां लिखने के लिए, हमें 1.5 मिनट मिलेगा, या मैक्सिमम मिला तो 2 मिनट मिलेगा. तो इसलिए हम कमेंट को शॉर्ट में लिखें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है. लेकिन अगर मान लीजिए थ्योरी में आ रहा है 2 मार्क्स में, तो हम इसको साथ में एक्सप्लेन करके लिखेंगे. जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, नॉक्टिलुका इज माइक्रोस्कोपिक. इट मींस नॉक्टिलुका कांट बी सीन बाय द नेकेड आई. It can be seen with the help of the microscope. Why? Because it is so much minute. बहुत ही ये छोटा होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके देख सकते हैं. तो नॉक्टिलुका कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, और ये क्या है, ये प्रोटोजोन कैरेक्टर है. सेकेंड हमने लिखा है यूनिसेलुलर. इट मींस नॉक्टिलुका की जो बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, क्योंकि जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल की इनकी बॉडी होती है. नो डिवीजन ऑफ लेबर. In case of all protozoans, there is no division of labor. It means all functions performed by the single cell. For example, simply हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज कीजिए एक फैमिली है और उस फैमिली में 4 मेंबर हैं. एक मेंबर का वर्क क्या है,
ब्रूमिंग का है, दूसरे मेंबर का वर्क क्या है, वॉशिंग का है, तीसरे मेंबर का वर्क क्या है, क्लीनिंग का है, चौथे मेंबर का वर्क क्या है, अर्निंग का है। तो इसका मतलब हमने वर्क को डिवाइड कर दिया, तो वहां पर क्या है, लेबर का डिवीजन हो गया। लेकिन सपोज कीजिए किसी फैमिली में एक ही पर्सन है, उसको ग्रूमिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, वॉशिंग भी करनी है, कुकिंग भी करनी है, अर्निंग भी करनी है, तो वहां पर क्या है, नो डिवीजन ऑफ लेबर। तो सिमिलर इन दिस केस the body of Noctiluca, because it is protozoan made up of single cell, so all the functions performed by the single cell, either respiration, excretion, digestion, so there is no division of labor. जो work है उसका division नहीं है। In this case, there is a protoplasmic grade of organization. जब हम प्रोटोजोन्स को स्टडी करते हैं तो हम प्रोटोजोन्स में बताते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। आगे जब हम चलेंगे इससे नेक्स्ट फाइलम में, हमने कहा पॉरीफेरा है तो हम कहेंगे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और आगे पढ़ेंगे हम और नेक्स्ट फाइलम पर जाएंगे तो उसके बाद हम कहेंगे टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। लेकिन इसकी बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेल्स नहीं होते हैं, एक ही सेल होता है, तो यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। एंड दिस प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू two parts, ectoplasm and endoplasm. The cytoplasm which is present on the periphery is known as the ectoplasm, and ectoplasm is vacuolated, while the endoplasm is present towards the central site and it is dense. Within this endoplasm, there is a nucleus is present, and nucleus is single. In case of Noctiluca, single nucleus is present, and the function of nucleus to control all the activities of the cell or the animal. This Noctiluca is aquatic and it is present in salty water. So it is marine. Aquatic है लेकिन fresh water form ना होकर ये क्या है, ये marine water में present होगा. And it is pelagic form. Pelagic form means it float on the surface of the water. Generally it is present near the sea coast and it is in floating condition. तो इसीलिए लिखा ये क्या है, pelagic form है, it floats on the surface of the water. Next, cosmopolitan. It means its distribution is worldwide. It show worldwide distribution. It means there are some animals or the plants which present at a particular place. हमने कहा कोई particular animal है वो इस particular continent में present है या इस country में present है, लेकिन बहुत सारे animal हैं जो throughout the world कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हिंदी में इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं सर्वव्यापी, ये कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो अगर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इट इज कॉमनली नोन एज द सी स्पार्कल, क्योंकि जहां पर ये बहुत ज्यादा नंबर अबंडेंस में प्रेजेंट होता है नॉक्टिलुका, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जो समुद्र है वो चमक रहा है, स्पार्कल कर रहा है, चिंगारियां निकल रही हैं। तो ये कैसा है, अभी हमने बताया था ये मैराइन है, तो मैराइन है तो इसका मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हम कह रहे हैं सी में या ओशन प्रेजेंट है। तो अगर ये सी में प्रेजेंट है और वहां पर ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें लगता है, और सी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है तो हमें लगता है कि जैसे ये सी स्पार्कल कर रहा है, तो इसलिए इसका कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज सी स्पार्कल। अभी जैसे हमने डायग्राम में दिखाया था कि इसकी शेप कैसी होती है, ये स्फेरिकल शेप का होगा, जैसे अर्थ होती है स्फेरिकल, इस तरह से ये स्फेरिकल होगा, या जैसे बॉल होती है स्फेरिकल, इस तरह का ये दिखाई देगा। नेक्स्ट, total body remain covered with the help of a membrane that is known as the pellicle, and this Noctiluca is free living. जो प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स may be parasitic or the free living, this Noctiluca is free living. Dinoflagellate, as here is the term di means होता है 2 और फ्लैजलेट मतलब फ्लजला, इसका मतलब इसमें कितने फ्लजला होने चाहिए, 2 फ्लजला होनी चाहिए, बट एक्चुअली 2 फ्लजला ना होकर इसमें 2 स्ट्रक्चर है। एक है इसमें फ्लजला जो स्मॉल साइज का होता है, डेलिकेट होता है, और दूसरा होता है इसमें टेंटिकल। तो एक फ्लजला प्रेजेंट होगा, एक टेंटिकल इसमें प्रेजेंट होगा। वेंट्रल साइड में इसमें ग्रूव होती है जिसको हम वेंट्रल ग्रूव कहते हैं, और ये वेंट्रल ग्रूव कैसी होती है, डीप, तो इसलिए लिखा है कि वेंट्रल ग्रूव इज डीप एंड वाइड and housed a flagellum and a tentacle. हमने डायग्राम में दिखाया था कि
जो ग्रूव है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगी और वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजलम भी होगा वहां पर और टेंटिकल भी होगा। वेंट्रल ग्रूव ओपन करेगी किसमें, साइटोस्टोम में, और साइटोस्टोम ओपन करेगा किसमें, साइटोफेरिंक्स में ओपन करेगा। इट इज होलोजोइक। एक्चुअली जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम दो पार्ट में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, या तो हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक या फिर बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक। अगर हमने ऑटोट्रॉफिक बोला है, इट मीन्स दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, like euglena, in case of euglena, because there is the chloroplast is present, so euglena can manufacture their own food like the plant. तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। लेकिन those animals which depend for food on other animals or plants are known as holozoic. तो zoic का मतलब एनिमल लाइक फीडिंग। तो अगर एनिमल लाइक फीडिंग है या हेट्रोट्रॉफिक है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, होलोजोइक। या तो होलोजोइक बोलेंगे या होलोफिटिक। होलोफिटिक अगर प्लांट लाइक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक अगर एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है फ्लैजलम हेल्प इन इंजेशन। अभी हमने बताया कि ओरल ग्रूव में क्या है, फ्लैजलम भी प्रेजेंट है, टेंटिकल भी प्रेजेंट है। फ्लैजलम डेलिकेट होता है, स्मॉल साइज का होता है और हेल्प करेगा किसमें, इंजेशन में। टेंटिकल भी लिटिल बिट हेल्प करता है इंजेशन में, जो फूड आएगा तो फूड को अंदर एंटर करने में हेल्प करेगा, बट द मेन फंक्शन ऑफ टेंटिकल इज इन लोकोमोशन। नेक्स्ट, in case of Noctiluca, mainly reproduction take place by the asexual reproduction, and in asexual reproduction it reproduce by the fission. And in case of the Noctiluca, there is sexual reproduction is also occur, but mainly reproduction take place by asexual reproduction. Within the body, within the protoplasm, there are the thread-like structures are present, which are known as the protoplasmic strands. Or these protoplasmic strands spread from central protoplasm to the peripheral protoplasm, or we can say from endoplasm to the ectoplasm. Within this protoplasm, there are some granules are present, and these granules are known as the photogenic granules. That is the term photo. Photo means light. Genic means generate. It means these granules can generate the light. ये granules क्या कर सकते हैं, light produce कर सकते हैं, and the color of light is blue-green light. So the photogenic granules which are present within the protoplasm of the Noctiluca can produce the blue-green light, and this phenomena of production of blue-green light is known as bioluminescence, or it is also known as the illuminescence. यहाँ पर वर्ड है बायो। बायो मतलब लिविंग थिंग, ल्यूमिनेसेंस मतलब प्रकाश उत्पन्न करना, लाइट प्रोड्यूस करना। तो अगर कोई लिविंग एनिमल है, बायो मतलब लिविंग थिंग, तो कोई लिविंग थिंग अगर लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, बायोल्यूमिनेसेंस, और उस एनिमल को हम बोलेंगे बायोल्यूमिनेसेंट। तो जो नॉक्टिल्यूका है ये बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता है, या हम कहें नॉक्टिल्यूका क्या है, बायोल्यूमिनेसेंट है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ल्यूसीफेरिन। Actually, within the body of the Noctiluca, there is a substance is present known as the luciferin. And due to the presence of this substance, Noctiluca can produce the blue-green light in presence of an enzyme that is known as the luciferase. Luciferase enzyme के presence में जो luciferin substance है, वो blue-green light produce करता है. And what is the function of these photogenic granules? These photogenic granules help in offense and defense. हिंदी में बोलेंगे रक्षण में और भक्षण में. How it help in offense and defense? Suppose कीजिए कि नॉक्टिल्यूका के पास में कोई फूड आ जाता है, तो क्या करेगा, ये ब्लू ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करेगा, और उस ब्लू ग्रीन लाइट से नॉक्टिल्यूका के पास जो भी फूड आया है वो क्या हो जाएगा, वो पजल हो जाएगा, और एकदम से क्या करेगा नॉक्टिल्यूका उस फूड को
फ्लजला और टेंटिकल की हेल्प से क्या कर लेगा, एंगल्फ कर लेगा ओरल ग्रूव की हेल्प से। और पहले कहाँ चला जाएगा, पहले साइटोस्टोम में, फिर साइटोफैरिंग्स में। डिफेंस, कोई भी अगर एनिमी आता है नॉक्टिल्यूका के पास में तो फिर से ये ब्लू ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करेगा, और जो इसका एनिमी है जैसे ही पजल होगा इमीडिएट ये क्या करेगा, इमीडिएट ये एस्केप कर जाएगा।